हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मिसलेनियस concept is that increment in optical path increment in optical path because of insertion of insertion of glass slab glass slab in path of light। आप बोलोगे कितना बड़ा किया आप लोग आपने। इंक्रीमेंट इन ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, किसमें? ऑप्टिकल पाथ में। बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन पाथ ऑफ लाइट। सोचिए कि लाइट जा रही है, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? c। ओके, एंड सपोज a glass slab is placed in the path of light and the thickness of the glass slab is the t. Okay, now suppose light travels from here also. Okay, and in the second case, that what I have drawn, in that case you can see that yes, light is traveling from glass, and here light is traveling from air. Okay, suppose this is the t, so physically you can say this distance is the t. But here light is not traveling the distance t, light will travel something else. How much that something else? Let's discuss. See, you know that n is equals to c by v. Refractive index n is equals to c by v. Therefore, n into v equal to c. Can we say like this? Okay. Therefore, n into v into some time interval delta t. Let's say like that, is equals to c into that much time interval delta t. So here c into delta t. Okay, this is the distance traveled in the air. Distance traveled in air. Okay, and actually see here it is a air, and here glass. Okay, so in air actually how much distance is traveled? T. Okay, but suppose the light is not traveling through air, and if it is traveling through glass, then how much distance it will travel? Nv delta t. Okay, and see this is here what is the speed? V. And suppose light goes from here to here in time delta t, here to here delta, so V delta t is equals to what? You can say V delta t is nothing but a t. What is that? T. Means what? Here I want to say is that when light is traveling through the glass slab, it is not traveling distance t, but it is traveling distance nt. How much distance? Nt, where n is the refractive index and t is the, what is t? T is the thickness. Okay. Suppose if it is traveling in the air, then it is traveling how much distance? T. But if it is traveling in some medium, then how much it is traveling? nt. कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी बच्चों? nt। ठीक है, उसमें से अभी देखिए अच्छी तरीके से क्या इन YDSE। चलो फिर से आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर से, ठीक है, अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। देखो ये क्या था? स्लिट नंबर 1, दिस इज अ स्लिट नंबर 2, and here we get central bright fringe. Okay, suppose light comes from here and light comes from here. Okay, this is a P. Okay, and you know that here is the source and it is emitting the light. Okay, and this is the light going like this. Okay, wavefront and all this this distance s1 and s2 distance is the d, this distance is a d, and all that. Here cb, central bright fringe, that we have discussed, and cb means what? Path difference.
path difference is equals to 0. Suppose here this path is a S1P. So you can say S1P is equals to S2P. Can we say like this? Yes, because it is a central bright fringe. But now let's magic begins. Let's magic begins मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे थोड़ा सा जो सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा। सोचो कि पहली स्लिट के आगे हमने क्या रख दिया है? ग्लास स्लैब। ओके, क्या रख दिया बच्चों हमने? ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस कितनी है? टी। ओके, मैं इतना करेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाया। देखो, जिसकी थिकनेस कितनी है? टी। ठीक है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? एन। तो अब क्या होगा? सो आफ्टर आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास स्लैब, path difference path difference इक्वल्स टू, अभी पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो पहला जब हम देखेंगे तो S2P। क्यों? क्योंकि वो तो एयर में है, एयर में ही है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। माइनस, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पूरा पूरा अगर वो एयर में ट्रैवल करता तो डायरेक्टली हम क्या लिख देते? S1P। लेकिन क्या पूरा उसने एयर में ट्रैवल किया है? नहीं। उसमें से टी जितना, टी, ठीक है, आप थोड़ा सा ये जो स्लैंट है उसको इग्नोर कीजिए। तो टी जितना उसने एयर में से ट्रैवल नहीं किया, मतलब फिजिकली उसने जो, सॉरी, फिजिकली मतलब कि एयर में उसने कितना ट्रैवल किया? S1P माइनस टी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो टी जितना माइनस कर दिया तो आ गया। लेकिन जब उसने एयर में ट्रैवल नहीं किया तो उस टाइम पर उसने किस में से ट्रैवल किया? ग्लास स्लैब में से। तो उसमें उसने कितने ट्रैवल किया? तो मल्टीप्लाई बाय एन, इतना ट्रैवल किया। ठीक है, समझ में आया बच्चों अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइट ऐसे गई, ठीक है, सोचो ये S1 है, ये P है। तो अगर ये फुल्ली एयर है तो कोई बात नहीं, ये हो गया S1P। लेकिन दूसरी कंडीशन, ये S1P और यहाँ पर क्या है? ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब है, उसकी थिकनेस कितनी है? T, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? N। तो यहाँ पर क्या होगा कि S1P जितना डिस्टेंस अगर हम टोटल लेंगे तो वो तो डिस्टेंस किस में हो गया बच्चों? एयर में हो गया। लेकिन क्या लाइट ने पूरा एयर में ट्रैवल किया है? पहले तो ये सोचो। नहीं, कितना एयर में ट्रैवल किया है? तो S1P माइनस टी, टी इज नॉट टाइम, टी इज अ थिकनेस। इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला और ये वाला इतना ट्रैवल किया है। अभी उसने इतना एयर में ट्रैवल नहीं किया, तो किस में ट्रैवल किया वो तो ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल हमें पाथ लेना है। तो उसमें उसने ग्लास में ट्रैवल किया, तो ग्लास में कितना? एनटी। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन सभी बच्चों को यही होता है कि बच्चों ग्लास में जो, सॉरी, उसने ग्लास में से ट्रैवल किया तो फिजिकली वो में तो वो टी ही दिख रहा है, आप वहां पर एनटी क्यों लिख रहे हो? लेकिन बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है। तो अभी देखिए क्या लिख सकते हैं? S2P माइनस S1P प्लस टी माइनस एन टी। ठीक, तो S2P माइनस S1P, अभी S2P और S1P तो सेम है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए? कैंसर। सो T इंटू वन माइनस एन, ये क्या हुआ? पाथ डिफरेंस। एक चीज और देखिए, हमने किस में से किसको माइनस किया? S2P में से हमने S1P को माइनस किया। और n क्या है बच्चों? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया, ये कैसा रिजल्ट आएगा? लेस देन जीरो, नेगेटिव। क्योंकि 1 माइनस एन, ओके, और n तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये जो पहली टर्म है S2P, ये छोटी है, और ये वाली जो टर्म है, ये टर्म कैसी है? बड़ी है। कौन सी टर्म? ये। कहने का मतलब क्या है? हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore after inserting glass slab both paths no longer equal, no
longer इक्वल, ठीक है। अब वो इक्वल नहीं रहे। ओके, तो इसका मतलब पाथ अगर इक्वल नहीं रहे, therefore we will not get CB at its original position। ओरिजिनल पोजीशन मतलब कि यहाँ पर आपको CB नहीं मिलेगा। ओके, तो CB कहाँ मिलेगा बच्चों? CB या तो नीचे शिफ्ट होगा या तो ऊपर शिफ्ट होगा। कहाँ पर शिफ्ट होगा? अच्छी तरीके से सुनिए। यहाँ अगर ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ नीचे शिफ्ट होता है, ठीक है, तो दोनों का पहले तो एक काम करते हैं। ये स्क्रीन थी, हम कंसिडरेशन करते हैं। अगर नीचे शिफ्ट होता है बच्चों, अच्छी तरीके से सुनना, अगर नीचे शिफ्ट होता है तो इसको तो और कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। कहाँ? S2P वाली को, और S1P वाली को ज्यादा डिस्टेंस और ऊपर से उसको इसमें से ट्रैवल करना पड़ा, तो पाथ डिफरेंस तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर ये वाला पॉइंट ले बच्चों, ये वाला, तो जिसमें क्या है कि S2 का डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब कि S2 की पाथ लेंथ बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, और इसकी थोड़ी कम होके, और वो जो ग्लास वाली है वो ऐड होके दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। मतलब कि CB ऊपर शिफ्ट होगा। CB कहाँ पर शिफ्ट होगा? ऊपर, ठीक है। अगर हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह, ये है स्लिट S1, ये है स्लिट S2, ठीक है। अब आपको यहाँ CB देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या हो? ग्लास स्लैब। ओके, और कितना शिफ्ट हुआ? सोचो कि उसका शिफ्ट है x जितना। कितना है? x। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, CB will get shifted। ओके, ग्लास प्लेट इंसर्ट करने से CB शिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरा, CB will get shifted on that side, on that side before which glass slab is inserted। मतलब कि S1 के आगे रखा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, अगर S2 के आगे रखा होता तो नीचे जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं भैया कि पाथ डिफरेंस 0, ठीक है। अगर हमने इसको नहीं रखा होता बच्चों तो पाथ डिफरेंस आता। कितना पाथ डिफरेंस आता? ये था d sin थीटा। हमने पहले भी एक बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है। ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है स्मॉल d, ये भी क्या है? थीटा, ये है t, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी? n। और अगर आप यहाँ से भी कनेक्ट करते हो तो ये भी कितना मिलता है? थीटा, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया है। तो ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो पाथ डिफरेंस कितना होता? d sin थीटा। अच्छी तरीके से सुनो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो रे थी, S2 से निकलने वाली रे, उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया था? d sin थीटा जितना। तो इसका मतलब S1 ने भी उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। किसकी वजह से? इस प्लेट की वजह से। किसकी वजह से? इस प्लेट की वजह से। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? therefore we can say that, बहुत अच्छी चीज आ गई, क्या? that d sin theta is equals to n minus 1 into t। देखो इतना इंक्रीज हो गया था ना। आप बोलोगे सर आपने तो 1 माइनस एन लिखा था, लेकिन बच्चों मैंने ये इसीलिए लिखा था कि आपको शो कर पाऊँ कि ये नेगेटिव है और ये बड़ा है। कौन सा? ये वाला।
अगर हमें पाथ डिफरेंस फिजिकली चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल, एंड यू विल गेट आंसर n-1 इंटू टी। अगर आपको एक बार प्रूव करना है तो आप खुद से कर सकते हो। अभी d sin थीटा इज इक्वल्स टू हम d tan थीटा भी बोलते थे, n-1 इंटू टी। d tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन d ऐसा भी बोलते थे, तो n-1 इंटू टी। ओके, तो shift in the CB, shift in CB is equals to x is equals to क्या होगा, n-1 इंटू टी इंटू डी अपॉन डी। ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर हमें इस प्लेट की थिकनेस चाहिए तो टी को सब्जेक्ट बनाओ, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इंटू डी अपॉन डी इंटू n-1। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे तरीके से आपको? तो ये होगा, ऐसी चीज होगी जब आप ऐसा प्लेस करते हो। देखो एक बात और है, ये CB है, बस अब यहाँ से शुरू क्या, फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क। हाँ, मतलब कि जो CB की ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पर अब थर्ड डार्क आ गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेमड़ा डी बाई डी, लेमड़ा डी बाई टू डी ये सब था, वो सब रहेगा कांस्टेंट। वो सब कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ से फिर से फर्स्ट डार्क, यहाँ से फिर से फर्स्ट ब्राइट, ऐसा ये सब चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि नो चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस। ओके, दूसरा थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस, thickness of fringes and sharpness of fringes। इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से ऐसा आप याद रखिए। तो कभी कभी स्मॉल ग्लास प्लेट का अगर हमें मेजर करना है थिकनेस तो ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है। ओके, आइए इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करिए, करें। क्या लिखा है देखिए, in Young's experiment, if transparent thin sheets are placed in front of two thin slits such that the central bright fringe remain at the same position, the thickness and refractive index of both sheets are T1 and T2 and N1 and N2 respectively. In this case, okay, क्या आपको कुछ समझ में आया? शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। यहाँ पर पहले जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी वो तो यहीं पे थी। ओके, अब यहाँ पर हमने एक ग्लास प्लेट रखी और एक यहाँ पर रखी, तो ऐसा देखा गया कि CB वही की वही है। तो इसका मतलब इनकी वजह से ये, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसकी थिकनेस T1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और थिकनेस T2, इसकी वजह से जो चेंज आया होगा, इंक्रीमेंट इन पाथ, सेम टू सेम इसकी वजह से भी आया होगा। कहने का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन पाथ because of first slab is equal to increment in path because of second slab। अभी इंक्रीमेंट इन पाथ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n-1 इंटू टी। तो n1 - 1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू n2 - 1 इंटू T2। ये इंक्रीमेंट इन पाथ है, हमने शुरू में ही उसको डिस्कस किया ना बच्चा, शुरू में, मतलब देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट हो गया ना, पहले कुछ नहीं था लेकिन इतना डिफरेंस आ गया, मतलब कि इसका इंक्रीमेंट होगा तब भी आ गया। ओके तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से नाउ,
नाउ सी, पहला तो ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा। T1/T2 अगर करे, T1/T2 इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, N2-1/N1-1। तो N2-1/N1-1, लेकिन यहाँ पर तो अच्छा T1/T2 ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ओके, अभी दूसरा देखिए, 7th नंबर का। अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 is placed in the passage of one ray in Young's experiment. If the central fringe is bright, the minimum thickness of the plate is। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये थी सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट। एक चीज और मुझे आपको बोलनी थी, अच्छा हुआ चलो ये एग्जांपल में याद आ गया। सभी फ्रिंज की ब्राइटनेस सेम रहती है, सभी फ्रिंज की ब्राइटनेस कैसी रहती है, सेम। ऐसा नहीं कि सेंट्रल वाले है तो उसकी हाईएस्ट रहेगी, नहीं। अच्छा अगर हम इसकी ब्राइटनेस का देखें, देखो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, फिर ये ज़ीरो, फिर ज़्यादा, ज़ीरो, ये एक्सिस है। और यहाँ पर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़ीरो फिर ज़्यादा, ऐसा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। तो सबकी इंटेंसिटी सेम है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, देखिए ये डार्क, ये ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ठीक है, और ये डार्क। तो यहाँ पर तो कैसे पता चलेगा कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। हाँ एक बात और है कि सोचो हमें पता चला कि ये एग्जैक्टली सेंटर में मिली, इसीलिए हम इसको सीबी मान लेंगे। अच्छा अगर ये सीबी हो गई तो इसका मतलब ये हो गई फर्स्ट डार्क, और ये हो गई फर्स्ट डार्क, फिर ये फर्स्ट ब्राइट ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि प्लेट वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो प्लेट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो नीचे प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, नीचे वाली प्लेट को भूल जाओ। किसको इंट्रोड्यूस किया, पहले वाली, जिसकी वजह से सीबी सोचो यहाँ पर आ गया। अभी सीबी अकेला नहीं आएगा, पूरी पैटर्न को लेके आएगा। मतलब कि यहाँ पर वन डार्क, फिर वन ब्राइट, टू डार्क, ये टू ब्राइट हो सकता है, फिर थ्री डार्क, थ्री ब्राइट, और ऊपर भी वैसा ही, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है कि सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, मतलब कि यहाँ पर जो उसकी जगह जिसने ली वो भी कौन सी फ्रिंज ही थी, ब्राइट ही थी। कौन सी थी, ब्राइट। फिर हमें फाइंड करने को बोला है कि मिनिमम थिकनेस। अभी देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जगह पर यहाँ पर तो हमने 2b को दे दी, लेकिन मिनिमम शिफ्ट हो इसीलिए हम cb की जगह किसको देंगे बच्चों, 1b को देंगे। कुछ समझ में आया। अगर 2b को दी इसका मतलब शिफ्ट ज्यादा होया, अगर 3b को दी तो मतलब कि cb यहाँ पर होगा, तब जाके 3b यहाँ आएगी, ठीक है। मतलब शिफ्ट सीबी अगर थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर 1b आ सकती है ना। हमें क्या देखना है, मिनिमम थिकनेस। तो अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पाथ डिफरेंस क्या है, n-1 × t, ये पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लेमड़ा। अच्छा मैं बच्चों फिर से लिखता हूँ, μ-1 × t, ये पाथ डिफरेंस, ठीक है। किसकी वजह से आया था, इस प्लेट की वजह से, और यहाँ पर एन लेमड़ा, ठीक है। अभी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें किसकी, टी की। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 - 1 × t। अभी एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3, जीरो है लेकिन जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि सीबी तो ऊपर चली गई, इसलिए 1 लेते हैं। therefore टी मिनिमम इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 1.5 - 1, तो 0.5। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 लेमड़ा। सो विच इज ऑप्शन, ऑप्शन ए। ओके ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। An apparatus for Young's experiment is immersed in a liquid of refractive index 1.33। ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दी गई है, 1.33। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज अ 1 mm। ओके ये स्मॉल डी, एंड दैट बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ओके ये है कैपिटल डी। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज द 6300 एंगस्ट्रॉम। अच्छा मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई बच्चों। ओके कितनी है, 6300 एंगस्ट्रॉम इन एयर।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। चलो, डिस्टेंस बिटवीन consecutive bright इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। लेकिन ये तो हमें लेमडा एयर की दी गई है, तो हम पहले क्या करेंगे, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन। अभी n1 1, n2 कितना 1.33 इज इक्वल्स टू लेमडा टू हमें फाइंड करना है, लेमडा वन कितना है 6300 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर मैं लेमडा टू लिख दूँ। चलो, अभी लेमडा टू की वैल्यू क्या होगी 6300 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक है, अभी डी की वैल्यू कितनी है 1.33 और स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, तो मतलब कि 10⁻³ देखो ये 1.33 कैंसिल हो गया और ये 00 और 10⁻³ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁵ होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁵ बचा क्योंकि 2 और 3 5 कट गए। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर 0.63 into 10⁻³ मीटर। अभी दूसरा, keeping the apparatus in the liquid, one of the slit is covered with a glass plate of refractive index 1.53। क्या बात है, पहले पूरे एपरेटस को किसी पानी में डाल दिया, फिर पानी के आगे फिर से ग्लास प्लेट रखी। इफ इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज इज डिस्प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ द 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। देखो ये CB है, ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर डार्क। अभी शिफ्ट क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डार्क है ना वो यहाँ चली गई, तो CB है वो कहाँ चली गई होगी यहाँ पर, मतलब कि नया कुछ ऐसा देखने को मिला। ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क है, ये है CB और ये फिर से फर्स्ट ऑर्डर डार्क, तो शिफ्ट कितना हुआ CB में इतना, जो कि कितना है लेमडा डी बाई 2D। ये क्या है शिफ्ट इन CB। ओके, किसकी वजह से आया, तो बच्चों वो ऐसा बोला है ना, कीपिंग द apparatus इन द लिक्विड वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद द ग्लास प्लेट, उसी की वजह से। तो अभी आपको शिफ्ट इन CB का फॉर्मूला पता है, क्या है शिफ्ट इन CB इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू n-1 इंटू t इंटू d, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल d। अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू n-1 इंटू टी, लेकिन यहाँ पर 1 क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम था। अभी यहाँ पर एयर नहीं है, वाटर है, क्या है वाटर, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे n ग्लास माइनस n वाटर, ठीक इस तरह इंटू टी इंटू डी बाई डी। ये शिफ्ट, और ये कितना शिफ्ट है लेमडा डी बाई 2D, ये हमने अपने कॉमन सेंस से पता लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डी की वैल्यू कैंसल, ये कैपिटल डी की वैल्यू कैंसल, ठीक है। हमें क्या पता करना है थिकनेस, तो टी इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 NG माइनस NW, क्योंकि हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दी है, इसलिए हम यहाँ पर एयर वाली वेवलेंथ ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हाँ, और ये क्या है 1.5 कितना था 53 माइनस 1.33, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको देखिए 6300 एंगस्ट्रॉम, अभी 2 1.53 माइनस 1.33, तो 0.5 माइनस 3 2 ऐसा होगा। ओके, एंड व्हाट आंसर यू विल गेट 1.57 into 10 raised to minus 6। Okay, so in this way you can calculate this type of example। Okay, thank you and namaskar।